को भूमि पर छोड़ जाता है, वह विभूति कालांतर में अपनी असाधारण प्रतिभा से विश्व को चमत्कृत कर देती है। सत्य और अहिंसा के पुजारी, देश के उद्धारक, अछूतों के मसीहा, विश्व के शांति दूत मोहनदास करमचंद गांधी भारत की ऐसी ही किए। वाकई में महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। आप को गोली से छलनी कर दिया गया और वो ज्योति बुझ गई जिसने हम सबके अंधकारे जीवन में उजाला किया था। परंतु बापू द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर और को अपनाकर ही मानव समाज व दुनिया में एकता, सहयोग व शांति स्थापित की जा सकती है। बापू के सपने फिर से सजाना है, देकर लहर लहू का खतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिया हमने आज़ादी के गानों को, अब हमें भी देश को भक्ति का कर्ज निभाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yes, child, you got it, said my dad. Bapu is the name he always had. I saw his sketch again and again. I saw his sketch again and again. His returning smile was my greatest gift. His returning smile was my greatest gift. 2nd October is the day, my friends. 2nd October is the day, my friends. That suddenly changed my lifestyle. Thank you and have a long आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बापू जी ने हमारे देश में ज्ञान की रोशनी दी। उन्होंने एक ऐसी रोशनी फैलाई जिसने देश के हर कोने में उजाला किया। गांधी जी ने अपने दम पर दुनिया को यह साबित कर दिखाया कि सच्चाई और अहिंसा का रास्ता ही सबसे अच्छा मार्ग होता है। उनके द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख आंदोलन हैं 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आदि। उनकी जीवन की इस महान यात्रा का अंत 30 जनवरी 1939 को हुआ। अंत में उनकी कुछ पंक्तियां हैं। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। धन्यवाद। As he grew up, he became more interested in country struggle from foreign youth. He was highly impressed by Mahatma Gandhi's reivindication of Indian princes for their support of British rule in India. At the age of 16, he joined Gandhiji in the non-cooperation movement. He decided that he wants to give up his studies in response to Mahatma's call. This decision shattered his mother's hope. The family cannot dissuade him from what they thought was a disastrous course of action, but Shastri had made up his mind. When the Congress came to power after independence, the sterling worth of the apparently meek and unassuming Shastri had already been recognized by the leader of the national struggle, Mahatma Gandhi. Once he resigned his post as Minister for Railways because he felt responsible for a railway accident in which many lives were lost. Pandit Nehru, speaking in Parliament on this incident, endorsed Shastri's integrity and high ideas. He said he was accepting the resignation because it would set an example in constitutional propriety and not because Shastri was in any way responsible for what had happened. Replying to long debate on the railway accident, Shastri said, "Perhaps due to my being small-sided and short for tongue, people are apt to believe that I am not able to be very firm. Though not physically strong, I think I am internally not so weak." More than 30 years of dedicated service were behind Shastri. In course of this period, he came to be known as man of great integrity and competence, humble, tolerant, with great inner strength and resoluteness. He was a man of the people who understood their language. He was also a man of vision who led the country towards progress. Shastri was deeply influenced by the political teaching of Mahatma Gandhi. He passed away on January 11, 1966. He was in Tashkent, Uzbekistan, where he signed the peace agreement between India and Pakistan, named the Tashkent Declaration. After signing the treaty, Shastri was mysteriously passed away in Tashkent. It was said that he was passed away due to heart attack. I want to end my speech by one of his famous quotes. Let no day pass by without you working toward realizing your dream. Thank you. मजबूत कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया एवं सदियों से गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए भारत को आज़ाद कर दिया। ये कमाल ही तो था, दुनिया में एक ऐसा महात्मा भी था जो पाप से घृणा करता था, पापी से। महात्मा गांधी का जन्म आज के दिन 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। पढ़ाई लिखाई एवं खेलकूद में बेहद ही साधन रहे मोहनदास के बाद मात्र 23 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। गांधी हमेशा सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे।
उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सत्याग्रह के विचार को अपनाया और साबित कर दिखाया कि अहिंसा ही सबसे ताकतवर हथियार है। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। आज हम आजाद हैं तो इसका बहुत ज्यादा श्रेय महात्मा गांधी को भी जाता है। गांधी जी का जीवन देशभक्ति, अहिंसा, सच्चाई, शांति एवं दृढ़ संकल्प, कर्तव्य निष्ठा कर्तव्य निष्ठा का एक बहुत ही आदर्श उदाहरण है। गांधी जी को सम्मान देने के लिए एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स गोल चश्मा पहनते थे। इसके अलावा गांधी जी के नाम पर हमारे देश में 48 मुख्य मार्ग एवं विदेशों में बहुत सारे मार्ग हैं। महात्मा गांधी कभी अमेरिका नहीं गए, लेकिन अमेरिका में उनकी 1 दर्जन से 2 दर्जन से भी ज़्यादा प्रतिमाएं हैं एवं 1 दर्जन से ज़्यादा संगठन उनके नाम पे उनके कर्म पर चलते हैं। गांधी जी ने एक प्रसिद्ध वाक्य दिया था, अहिंसा परमो धर्म, जिसका अर्थ है अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस उनके अहिंसा के पुजारी होने के कारण ही 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंत में कहना चाहूँगा, जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, बदल दिया जिसने देश का हाल, जिसने पढ़ाया सत्य और अहिंसा का पाठ, वो थे हमारे गांधी बापू महान, वो थे हमारे गांधी बापू। धन्यवाद। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रात को निंदिया दिन को काम, कभी भजोगे हरि का नाम। रात को निंदिया दिन को काम, कभी भजोगे हरि का नाम। करते रहिए अपने काम, लेते रहिए
हमारा जो विद्यालय है वो पूरे ज़िले के लिए एक आदर्श है। यानी यहाँ पे पठन पाठन जिस स्तर का होता है या जो वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी हैं उसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़िले में हम आदर्श बने और सबसे अच्छा प्रदर्शन करें और ये सब कुछ हम दूसरे विद्यालयों को बता सकें किस तरह की प्रैक्टिसेस किस तरह के आयोजन हमारे यहाँ पे होते हैं। तो मैं आज आपके जो भी प्रस्तुतियाँ यहाँ पे रही हैं तो उससे मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि हमारा विद्यालय जो है वो ऐसे पेज सेटर की तरह से इस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक आदर्श विद्यालय की तरह से काम कर पाएगा। लेकिन अब इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और साथ में आपके अध्यापक भी बधाई के पात्र हैं कि आपकी प्रस्तुतियाँ ऐसी अच्छी हैं। निश्चित तौर पे जो भी आप यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं उसको कई बार सीधे डायरेक्टली और कई बार इनडायरेक्टली भी आप अपने अध्यापकों से सीखते हैं। म्यूजिक का कोई कार्यक्रम है तो सीधे आपको सीखना पड़ता है और कोई दूसरे कार्यक्रम है तो जब भी आपके अध्यापकों की यहाँ पे प्रस्तुतियाँ होती हैं तो इनडायरेक्टली आप सीखते हैं। तो इसीलिए वो सब बधाई के पात्र है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो स्तर आप लोगों ने यहाँ पे मेंटेन किया है उस स्तर को आप बढ़ाते चले जाएँ। इस तरह का हम कार्यक्रम बना रहे हैं क्योंकि सभी अनिश्चितता के समय में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने